تو میرے محترم دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو اس وقت تجارتی قافلے سال میں 2 مرتبہ جاتے تھے. ایک آج تھے تو بیٹھو کراچی گیا جی ٹر گیا، لاہور جانا ایک آدمی بھی ٹر جلدے. لیکن اس وقت تک رازنی تھی، راستے میں ڈاکو ہوتے تھے، لوٹ لیتے تھے، قتل کرتے تھے. تو یہ سفر ایسے نہیں ہوتا تھا. ایک بڑی جماعت تیار ہوتی، اس میں کچھ ذہین فتین لوگ ہوتے کاروبار کرنے والے، کچھ ساتھ باڈی گارڈ ہوتے، کچھ نوکر ہوتے، کچھ چاکر ہوتے، اور ایک بڑی جماعت سفر کے لیے نکلتی تاکہ راستے میں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو حضور کی عمر 12 سال تھی تو ابو طالب نے ایسی ایک جماعت تیار کی جس کے تجارتی سفر تھا ملک شام کی طرف. کس کی طرف؟ ملک شام کی طرف. اب حضور کی عمر 12 سال ہے تو حضور کو ماں کا صدمہ، دادا کا صدمہ یہ بھی تھا، اور ایک چاچا تھا وہ بھی مکہ میں حضور کو اکیلے چھوڑ کے جا رہا تھا. حضور کے چہرے پر غم کے آثار تھے کہ چاچا مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، میں یہاں کیا کروں گا. تو کہنے لگے چاچا جان میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. یہ پہلا تجارتی سفر ہے. کتنی عمر میں؟ 12 سال. میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. چاچا نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، میں اکیلا یہاں کیا کروں گا. ٹھیک ہے تیار ہو جا. چاچا میں اپنے ساتھ صدیق کو بھی لے کے جاؤں گا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ یاری بچپن کی ہے اور ابھی تک ہے یا نہیں؟ ابھی تک صدیق کس کے پہلو میں سویا ہوا ہے؟ یوں قبروں کو دیکھو تو یوں لگتا ہے صدیق نے حضور کے بازو پہ سر رکھ کر صدیق سویا ہوا ہے. اور یہ قیامت تک رہے گی یہ دوستی. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن زمین سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور میرے دائیں طرف عمر ہوگا، بائیں طرف ابوبکر ہوگا. میرے دونوں بازو، دایاں بایاں بازو عمر کے کندھے پر ہوگا اور دایاں بازو صدیق کے کندھے پر ہوگا. ہم دونوں تینوں ساتھ اٹھیں گے. حضور نے فرمایا ہم تینوں کی مٹی ایک تھی. جہاں سے مٹی لے کر ہمیں بنایا گیا ہم تینوں کی مٹی سچ ہے یا نہیں؟ جہاں کی مٹی وہاں کا خمیر کیا تلنجی، یا جہاں کا خمیر وہاں کی مٹی. تو میرے محترم دوستو، چاچا نے کہا وہ تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے، پتہ نہیں چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا، پتہ نہیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو حضور نے کہا چاچا آپ میرے ساتھ چلے جائیں، میں اس کے باپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ سارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ وہاں جائیں گے، بیٹھیں گے، آپس میں باتیں کریں گے، تو میں کس سے باتیں کروں گا؟ مجھے صدیق چاہیے جو میری عمر کا ہے، میرے برابر کا ہے. میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، بیٹھوں گا، باتیں کروں گا. آپ بزرگ ہیں، آپس میں باتیں کریں، اتنا لمبا سفر ہے. تو حضور نے ابو قحافہ سے جا کر اجازت لی، صدیق اکبر کے باپ سے. انہوں نے اجازت دے دی. اور مزے کی بات، اس وقت ان کے ساتھ امیہ کا غلام بلال بھی تھا. اب بچے کتنے ہو گئے؟ 3. ایک بلال، ایک صدیق رضی اللہ تعالی، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 ہو گئے. غلام جس نے نبوت ملنے کے بعد بھی غلامی کی، اور اس نے غلامی نبوت ملنے کے بعد نہیں، بچپن سے ہی شروع کی. ایک صدیق تھا پہلے سفر میں تجارت میں جو 12 سال کی عمر میں ہوا. ایک صدیق تھا، ایک غلام بلال تھا، اور ایک آقا تھا جس کا نام محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر یہ قافلہ چل پڑا. چلتے چلتے اس قافلہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے. غالباً دوپہر کا وقت ہوگا. تو کہتے ہیں وہاں جرجیش ایک راہب تھا، بزرگ تھا، اور اس کو بخیرہ راہب کہتے تھے. وہ کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر، ایک قافلے آتے جاتے جو کچھ کرتا، وہ اپنے عبادت خانے سے کبھی باہر نہیں نکلا. جب یہ قافلہ آیا، ملک شام جا رہا ہے،
اور یہ काफले ने पड़ाव डाला तो वो बहीरा राहिब अपने इबादत खाने से बाहर निकल आया। अपने इबादत खाने से बाहर निकल आया और आकर वो मजमे में किसी को तलाश करने लगा और तलाश करते करते उसने जाकर 12 साल के मासूम मोहम्मद मुस्तफा का हाथ पकड़ लिया, बाजू पकड़ लिया और नारे लगाने लगा, हाज़ा रहमतुल लिल आलमीन, हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, बअसल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन। ये बच्चा बाजू पकड़ा हुआ नारे लगा रहा है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। ये बच्चा क्या है? रहमत, सारे जहान के लिए रहमत है। और ये अल्लाह का हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन है और ये रब्बुल आलमीन का रसूल है। बअसल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। ये बच्चा 40 साल के बाद ये आएगा, अल्लाह इसको रहमत बनाकर भेजेगा सारे जहान के लिए। अबू तालिब ने कहा, तुझे कैसे पता चला? तुझे कैसे पता चला? तूने आकर सारे मजमे में इसी का बाजू पकड़ लिया। सरदार मैं हूं, बाजू पकड़ा तूने इसका। ये तो मेरा भतीजा है, मक्का का सरदार तो मैं हूं। उसे क्या पता ये सारी कायनात का सरदार है। तू मक्का का सरदार है और ये सारी कायनात का सरदार है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसने कहा मैंने इसलिए मुझे पता चला, जब आपका काफिला वहां से चल रहा था तो आसमान में तजल्लियात फैल रही थी, आसमान में नूर फैल रहा था और बादल आपके साए के आपके काफिले के साथ चल रहा था और कहीं बादल नहीं था, लेकिन आपके काफिले के साथ बादल चल रहा था। और मैंने देखा दरख्त सईदे में पड़े हुए थे, मैंने देखा पत्थर और पहाड़ सईदे में पड़े हुए थे। मैं समझ गया कि बादल साया किसी आम के आदमी के लिए नहीं करते। मैं समझ गया दरख्त किसी आम आदमी के लिए सईदा नहीं करते। मैं समझ गया पत्थर किसी आम आदमी के लिए सईदा नहीं करते। मुझे समझ आ गई कि जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस काफिले में आखिर ज़मान नबी चल रहा है। इस काफिले में आखिर ज़मान नबी चल रहा है, जो हमारी किताबों में जिसकी बिशारत है। मैं उसी वक्त समझ गया था। अगर तुम्हें इस बात पर भी यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें इसके 2 शानों के दरमियान मोहर नबूवत दिखाऊं। शान इसको आते 2 शानों के दरमियान मोहर नबूवत दिखाऊं। हुजूर के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी सैब की तरह। सैब देखे आप ना, इस सैब की तरह यहां मोहर नबूवत लगी हुई थी दोनों शानों के दरमियान। अगर इन बातों पर भी यकीन नहीं होता, क्योंकि ये मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। दरख्तों को सईदा करते हुए, पत्थरों को सईदा करते हुए मैंने देखा, तुमने नहीं देखा। अगर इस पर भी यकीन नहीं तो उठाओ इसकी कमीज, उठाओ इसका कुर्ता, इसके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत लगी हुई है। लिहाजा आज दावत मेरी तरफ से, दावत मेरी तरफ से। दावत हुई, तैयार हुई, कालीन बिछे, सब उठ के दावत खाने के लिए बड़े बड़े सरदार। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुजूर को कहा, तुसी जरा ऊंठा शूठा का ख्याल करो, असी रोटी खा के आने सरदार सारे, तो तुसां वास्ते नाल ही टिफने विभाग कहना सा, तुसां वास्ते नाल ही टिफने विभाग कहना सा। लिहाजा हम समाना का कौन ख्याल करती। बच्चों को वहां छोड़ दिया, सरदार चल पड़े। इन्होंने समझा दावत सरदारों की है।
जो अल्लाह वाला कभी अपने इबादत खाने से नहीं निकला। ये सरदार तो आते जाते रहे थे, कभी किसी सरदार की दावत, कभी किसी सरदार के इस्तकबाल के लिए नहीं निकला। ये समझते ही नहीं थे कि आज ये सरदारों के इस्तकबाल के लिए कैसे निकला, इस बात को समझे ही नहीं थे। उन्होंने कहा दावत तो वैसे भी सरदारों की है, ये तो बच्चे हैं, सामान का ख्याल रखें, लिहाजा हम खाना खा के आएंगे और इनके साथ शापर में या टिफिन में डाल के ले आएंगे। दस्तरखान लग गया, खाना लग गया। जब वो रायब आया तो उसने यूं देखा मेहमानों में जिसके लिए दस्तरखान बिछाया गया वो है ही नहीं समझे। जिसके लिए कायनात बनाई गई है वो है ही नहीं, जिसके लिए सारी कायनात सजाएगी है वो है ही नहीं। रब ने फरमाया मेरे महबूब, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो मेरी इज्जत और जलाल की कसम अपनी खुदाई भी जाहिर न करता। अगर मैं तुझे पैदा न करता तो लोगों को पता ही नहीं होता खुदा कौन है। मैंने अपनी खुदाई जाहिर की है तुझे पैदा करके, और मैंने अपनी खुदाई जाहिर की है तुझे पैदा करने के लिए। अगर तुझे पैदा न करता, मेरी इज्जत की कसम मैं अपनी खुदाई को जाहिर न करता। उसने देखा, उसने कहा खबरदार नवाला लाओ, खाए कह रहे सुभान अल्लाह। उस बुजुर्ग उस नायब ने कहा खबरदार कोई जड़न वाला लावे, तो हाथ पे करो ना। भाई क्या हो गया? अब्दुल तालिब ने कहा हुआ क्या? उसने कहा मैंने तुम्हारी दावत नहीं की, मुझे सरदारों से कोई सरोकार नहीं, मुझे नवाबों से कोई सरोकार नहीं। तुम्हारे अंदर एक जवान था, एक 12 साल का बच्चा था जो रब का रसूल था, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है और आखिरुल ज़मान पैगंबर है, खातमुन नबीयीन है। उस बच्चे के लिए यह दस्तरखान बिछाया है। जब तक वो बच्चा इस दस्तरखान पे नहीं आएगा उस वक्त तक कोई एक लुकमा नहीं उठा सकता। सब जाम हो गए। मजबूरन सरदार उठा, अबू तालिब हुजूर सामान के पास बैठे हुए थे, उठाकर दलासा दिया, सर पे हाथ फेरा। ये अबू तालिब के अल्फाज है। अच्छा कोई ये कहे कि अबू तालिब हुजूर का मुरब्बी था? नहीं, हुजूर ने खुद, अल्लाह ने खुद साबित किया अबू तालिब हुजूर का मुरब्बी नहीं था, हुजूर अबू तालिब के मुरब्बी थे। उठाया और सीने से लगाया अबू तालिब ने और कहा भतीजे मोहम्मद जा हमारे साथ जा, तेरी वजह से तो लोग हमें खाना भी नहीं देते, तेरी वजह से तो तू हमारे साथ नहीं है तो लोग हमें खाना भी नहीं देते। जा हमारे साथ जा, दस्तरखान पे आ, तेरे सदके हमें भी खाना मिल जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। किसने कहा? और जिसके बारे में लोग कहते हैं अबू तालिब ने हुजूर का मुरब्बी था, वो खुद कहते हैं आ भतीजे दस्तरखान पे बैठ, तेरे सदके हमें भी खाना मिल जाएगा। मैं कहता हूं तेरे जूतों के सदके हमें भी खाना मिल जाएगा, तेरे जूतों के सदके हमें भी खाना मिल जाएगा। हाँ मोहम्मद दस्तरखान पे बैठ, तेरे जूतों के सदके हमें भी खाना मिल जाएगा। और जब अबू तालिब हुजूर को लेकर आए तो बादलों ने सर पे साया किया हुआ था, बादल साथ चल रहे थे। और जब मजमे में पहुंचे, क्योंकि दोपहर का वक्त था, जोर का वक्त था, खाने का वक्त था दोपहर का, तो यहां पर एक दरख्त था जिस दरख्त के नीचे सारे बड़े बड़े सरदार बैठ गए थे। साया सारे सरदारों से मल छुड़ा था। सारे साए के नीचे कौन बैठ गए थे? सरदार। और ये जब आया मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मजमे में तशरीफ लाए तो एक कोने में बैठे, वहां पर नबूवत के वज़ुहा वाले चेहरे पर धूप लग रही थी। सारे सरदार बैठ गए उसमें साए में, और मोहम्मद अरबी बैठा धूप में, और वज़ुहा वाले चेहरे पर जब धूप पड़ी तो मेरे रब ने बर्दाश्त नहीं किया, दरख्त ने अपना सारा साया उठाकर हुजूर पे रख दिया। दरख्त ने अपना सारा साया उठाया मजमे से और मुकम्मल साया हुजूर पे कर दिया। सारे सरदार धूप में बैठे हुए हैं, सारी कायनात का सरदार साए में बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह तो कह दो। चीख पड़ा वो बहीरा राहिब, चीख पड़ा वो बहीरा राहिब,
और मैं तुम्हें नहीं कह रहा था कि ये अल्लाह का रसूल है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह इसको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, तुम मेरी नहीं सुन रहे थे। और जरा दराज के साए को तो देखो, अबू तालिब को आया, सरदार साहब जरा दराज के साए को तो देखो। सरदार से साया हटकर सारी कायनात के सरदार पे चला गया है। उस बगीरा राहिब ने कहा, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि आखिर ज़मान पैगंबर 12 साल की उम्र में सफर तिजारत करेगा, मुल्क शाम का सफर करेगा। लिहाजा अबू तालिब से कहने लगा, इस बच्चे को खतरा है और रोमी इसकी तलाश में है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे को जाया कर दें। मेरा मशवरा यह है, शाम ले जाने के बजाय इस बच्चे को वापस मक्का में भेजा जाए। ये मशवरा हो ही रहा था, अचानक 7 रूमी आ गए। कितने? ये बहीरा राहिब दौड़कर बाहर निकला, उनको आगे आना ही नहीं दिया। भाई क्या आए हो, क्या कर रहे हो? काम रूम से आए हैं, ये मुल्क शाम को 7 रास्ते जाते हैं और हम 7 आदमी आए हैं। क्या आए हो? कहा हमें आखिर ज़मान पैगंबर की तलाश है। हमारी किताबों में लिखा है कि वो इस महीने में और 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर करेगा तिजारती काफले के साथ, हम उसकी तलाश में। कहा क्या करोगे? कहा जहां मिलेगा वहीं मिटा देंगे। तो मुझे शाह जी का शेर याद आता है, जिस दीवे नू आप तू बाले कद किसी से बुझदा। हमारे शेख क्या फरमाया करते थे, जिस दीवे नू तू आप बाले ओ कद किसी तो बुझदा। जिसको तू खुद जिंदा रखना चाहे उसे कोई मिटा सकता है, जिसे रब जिंदा रखे उसे कोई मिटा सकता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, उसने कहा भाई तुम फजूल चल रहे हो। रैया राहिब ने कहा, जिसको अल्लाह ने नबूवत देनी अल्लाह दे कर रहेगा, लेकिन हमने अभी उसको देखा नहीं, इधर आया या नहीं आया। लेकिन हुजूर अंदर बैठे हुए, उन्हें को टरकाट और कूक है वापस की, इधर नहीं आया जी, इधर कोई काफिला नहीं आया, ना वो बचे ना कोई काफिला है। उनको वापस किया। इधर से हुजूर के चाचा से कहा, इस बच्चे का आगे सफर करना मुनासिब नहीं, लिहाजा इस बच्चे को यहां से वापस किया जाए। सिद्दीक़ अकबर के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना बिलाल के साथ इनको वापस मक्का मुकरमा भेज दिया।